شہر کی کچھ عظیم شخصیتیں بھی ہیں اور ہمارے درمیان اس وقت انجینئر محمد دانش صاحب سیڈھے سے تشریف لائے ہیں، جو اس وقت سیڈھے میں جو پرائمری سیکشن ہے اس کے ذمہ دار بھی ہیں۔ آئیے نعت پاک کے بعد اب کچھ اس پروگرام کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں، چند 2-3 منٹ، اور اس کے بعد کچھ اصول و ضوابط، اور پھر اس کے بعد پروگرام کا آغاز۔ آج جیسا کہ ہم نے شروع میں درخواست کی تھی، آج کی صدارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں حضرت قاری نسیم صاحب دامت برکاتہم۔ اسی طرح سے ہمارے نہٹور کی ایک اور عظیم شخصیت جس سے لوگ بہت کم واقف ہیں، خواص کے علاوہ عوام بہت کم واقف ہے، میں چاہتا ہوں کہ حضرت کا تعارف پورے شہر میں آئے اور معلوم ہو کہ علماء ایسے بھی ہوتے ہیں۔ آج کے حکم ہمارے درمیان ہے۔ کچھ انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی کسی خاص مقصد اور کسی خاص منصب فریضے کو انجام دینے کے لیے دنیا کے اندر بھیجتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آنے والوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں اور اپنے ہم عصروں کے لیے باعث فخر ہوتے ہیں۔ ان سے میری مراد ہے حضرت مولانا ڈاکٹر زاہد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو آج کی اس محفل میں حکم کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ حضرت والا ایک بہترین عالم، ایک بہترین صوفی، ایک بہترین بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت والا PhD ہولڈر یعنی کہ ڈاکٹر بھی ہیں، اور اس وقت جو آپ خدمت انجام دے رہے ہیں وہ دہلی میں زینت القرآن کے اندر آپ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ لیکن حضرت کا تعلق نہٹور سے ہے۔ آپ کا جو مخلصانہ انداز ہے، آپ کا جو صوفیانہ انداز ہے، آپ کی جو طرز زندگی کا سادہ ہونا ہے، وہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے میں پورے اسکول کی جانب سے، تمام طلباء کی جانب سے، تمام اسٹاف کی جانب سے حضرت کا استقبال کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آج کے حکم کے فرائض کے لیے حکم کی جو منصب ہے اس کو آپ حضرت والا قبول فرمائیں۔ حضرت والا کی تشریف آوری کے بعد آج کا یہ پروگرام مسابقہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئز پر ہے۔ اس میں سوالات پر مبنی یہ پروگرام ہوتا ہے۔ ہر طالب علم کے پاس 102 سوال ہیں، تک 100 سوال ہیں، اور ان کی ٹیمیں بنائی گئی ہیں۔ کچھ طالب علم نے زیادہ سوال یاد کیے، کچھ نے کم، لیکن پوری ٹیم کی ذمہ داری ہے ان 100 سوالوں پر محیط ہونا۔ اب 2 ٹیمیں شروعات میں نے بتایا تھا، دوبارہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے سامنے 2 راؤنڈ ہیں، ایک ہے فرسٹ کلاس کا جس کی اپنی 2 ٹیمیں ہیں اور ان کا مقابلہ آخر میں ہوگا۔ جو ابھی مقابلہ ہے وہ 5 ٹیموں کے درمیان ہے۔ 2 ٹیمیں 5th کی ہیں اور باقی 2nd، 3rd، 4th سے ایک ٹیم ہے۔ 5th کے جو ٹیم ہے، جو بوائز کی ٹیم ہے اس کا نام ہے شبلی، جو گرلز کی ٹیم ہے اس کا نام ہے فاطمہ۔ اس کے بعد جو 4th کی ٹیم ہے اس کا نام ہے عائشہ، جو 3rd کی ٹیم ہے اس کا نام ہے ابو بکر، اور جو 2nd کی ٹیم ہے ان کا نام ہے اسماء رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلا راؤنڈ 5th اور 5th کے درمیان ہوگا۔ ہر راؤنڈ میں 10 سوال معلوم کیے جائیں گے۔ سوال اسٹیج پر پرچی کی شکل میں ایک باؤل میں رکھے ہوئے ہیں۔ صدر محترم یا اور مہمان اس میں سے ایک سوال پوچھیں گے۔ جس طالب علم، اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا بغور یہ جو ٹیم ہے ہماری، مساہمین ہماری بات کو بغور سنیں۔ آپ لوگ سوال کو سب سے پہلے بہت دھیان سے سنیں گے۔ آپ یہ جو سوال ہے یہ آپ کے پرچے کے اندر جو دیا گیا ہے اسی میں سے سوال آپ سے پوچھا جائے گا۔ سوال ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر ریپیٹ کرنا بھی پڑے تو ایک بار بس۔ جو طالب علم ایک بار جواب دینے کے لیے آگے آ گئے اور انہوں نے مائک لے لیا، انہی کا جواب
आखिरी जवाब माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी और को याद आ गया कि मुझे याद आ गया अब मैं जवाब दे दूं, ऐसा नहीं होगा। जो तालिब इल्म भी माइक पर आएगा उसका जवाब आखिरी जवाब माना जाएगा। अब वो जवाब सही हो या गलत हो वो हकम साहब फैसला करेंगे। ये सदर मोहतरम साहब बता देंगे, क्योंकि जवाब लिखे हैं पर्ची में, गलत या सही का बता देंगे तो आप उस एतबार से निशान लगा लीजिएगा। 3 से 10 सवाल होंगे। सही जवाब देने वाले पर सही टिक लगा दिया जाएगा और गलत जवाब देने के बाद इस तरह से गलत निशान लगा दिया जाएगा। और 10 सवाल के बाद काउंटिंग करेंगे हकम साहब और सदर मोहतरम। जिस टीम के ज्यादा सवाल सही होंगे वो टीम फातेह करार पाएगी और जिस टीम के सवाल कम होंगे वो टीम मफतू करार पाएगी, हारी हुई करार पाएगी। उसके बाद लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टीमों ने सारे सवाल याद किए हों, ये भी 10 का जवाब दे दे, वो भी 10 का जवाब दे दे, तो फिर फैसला कैसे होगा? फिर फैसला ऐसे होगा कि हमारे पास ये कुछ सवालात हैं, हमारे पास ये कुछ सवालात हैं जो उनके पर्चे से मुताल्लिक तो हैं लेकिन उनके पर्चों में नहीं है। फिर इनसे सवाल किया जाएगा और हकम साहब जो 10 की गिनती है, जो 10 की गिनती है उसके नीचे गिनती 11 बढ़ा लेंगे और फिर जब सवाल किया जाएगा जो कि किताब में नहीं है, उनके पास, उनके पर्चे में नहीं है, लेकिन अगर जो वो तालिब इल्म जवाब देगा, जो टीम उसका जवाब देगी वो टीम फातेह करार पाएगी। इसके अंदर जो सवाल है ये किसी को नहीं बताए गए हैं, ये पहली बार किसी को दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ सवाल हमने और मौलाना अब्दुल कादिर साहब ने मुरत्तब किए। तो इस तरह से जीत और हार का फैसला होगा। जो दूसरा राउंड होगा वो 3 टीमों में एक साथ होगा, 4th में, 3rd में, 2nd में, 3 टीमों में एक साथ होगा। जो 3 टीमें जब एक साथ का मुकाबला होगा तो पहले 10-10 सवाल किए जाएंगे। जब 10 सवाल पूरे हो जाएंगे तीनों टीम से तो फिर यह देखा जाएगा किसके सवाल सबसे ज्यादा सही है। जिसके सवाल सबसे ज्यादा सही है वो टीम फातेह करार पाएगी और आगे बढ़ जाएगी। अब 2 टीम वहां पर रह जाएंगी, जो 2 टीम बचेंगी फिर उन दोनों में मुकाबला होगा और उन दोनों से जो जीत कर आएगा वो आगे बढ़ जाएगा। इस तरह हमारा 2nd राउंड में 3 टीमें पहुंचेंगी। फिर जो 3 टीमें 2nd राउंड में पहुंचेंगी फिर उन 3 टीम का मुकाबला होगा। उन 3 टीम के मुकाबले के बाद उसमें जो फातेह करार पाएगी वो आगे बढ़ जाएगी। फिर जो 2 टीम वहां बैठी रहेंगी फिर उन दोनों का मुकाबला होगा। उन दोनों में से जो टीम जीतेगी वो फाइनल राउंड में आपस में लड़ेगी और फिर जो टीम जीतेगी वो शील्ड की हकदार होगी। क्लियर है सबको? ठीक है। खास तौर से वो बच्चे जो कंपटीशन में, उनको समझ में आ गया? ठीक है। एक बात हो सकता है कि सवाल किया जाए, हकम सदर मोहतरम सवाल करें या और कोई मेहमान सवाल करें तो बच्चों से जो बैठे हुए मेरे दाएं तरफ बहुत ध्यान से सुने। मौलाना अगर बहुत ज्यादा धूप है देख लें, अगर सवाल किया जाए, सवाल किया जाएगा और सवाल करने के बाद बहुत अहम बात है कि सवाल किया जाएगा और अगर दोनों टीमों जिस टीम से पूछा गया है उस टीम को उसका जवाब नहीं पता है तो इन तालिब इल्म में और जो हिफ्ज़ के तलबा बैठे हैं वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं कि इसका जवाब मुझे मालूम है। आप लेकिन वो बच्चे हाथ खड़ा करेंगे जो टीम में नहीं है, किसी भी टीम में नहीं है। वो अगर जवाब दे देंगे, कोई भी मेहमान भी कोई जवाब दे दें, अगर उलमा इकराम को छोड़ करके अगर कोई मेहमान भी जवाब दे दे कि इसका जवाब मुझे मालूम है, तो स्टेज पर पेन और पेंसिल रखी हुई है। बच्चों की उम्र देखकर और उनके तकाजे के एतबार से हमारे मेहमान उनको उसी वक्त वो गिफ्ट दे देंगे। ठीक है। जो भी बच्चे यहाँ पर आज इन्होंने हिस्सा लिया है उनके फर्स्ट के लिए तो शील्डें हैं। वो तो पहले कट लग जाए, सिर्फ मालूम सिर्फ ताकि ये लोग भी इंटरेक्ट रहें हमारे साथ, ताकि बिल्कुल गाफिल ना रहें। उसके बाद जो टीम जीतेगी उस टीम, एक चीज और मैं चाहूंगा, हकम साहब से बहुत दरखास्त है, खासतौर सदर मोहतरम से मौलाना नफीस साहब से भी दरखास्त है कि हो सकता है एक टीम में से कोई ही बच्चा 8 के 8 जवाब दे दे, उस टीम में किसी और की हिम्मत ना हो, याद ना आए, तो हमारे पास कुछ 5 तशजीई इनाम हैं। ये तशजीई इनाम यहाँ पर रखे हुए हैं।
जो आपको लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस पूरे प्रोग्राम में सबसे अच्छी रही है, उसका नाम लिखते रहे, नाम पूछ के अपने पास लिखते रहे। ये 5 तालिब इल्म होने चाहिए, वो इन 5 को ये शील्ड ले तशजीई इनाम के तौर पर, फर्स्ट आएंगे सेकंड आएंगे हारेंगे उससे अलग नहीं, तशजीई तौर पर उनको ये इनाम दिए जाए। तो इसका ख्याल रखें, उनका नाम पूछ लें। या हर तालिब इल्म अपना नाम, हर तालिब इल्म जवाब देने से पहले अपना नाम जरूर बताए। मिसाल के तौर पर मैंने सवाल किया और सवाल करने के बाद सबसे पहले जो तालिब इल्म आएगा वो सलाम करने के बाद कहेगा आलिया बेबी 5th क्लास, और जवाब ये है। अपना नाम बताएं ताकि हकम साहब को भी नाम मालूम हो जाए, लिखने में आसानी रहे। सारी चीजें सबको मालूम होंगी। हो गया। बिस्मिल्लाह, प्रोग्राम को शुरू करते हैं। इस वक्त दोनों टीमें धड़कनें जिस तरह से आप लोगों की तेज हैं बच्चों, इस तरह से हमारी भी तेज हैं। आज वाकई लग रहा है कि हमारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत होने वाला है, और अल्लाह ने चाहा मेहमान आने की बरकत से, और हम उलमाए किराम जो यहाँ पर हैं और हमारे मेहमान हैं उनकी दुआओं की बरकत से इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम बेहतरीन होगा। आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमारे दाएं जानिब जो टीम बैठी है वो शिवली है, और हमारे बाएं जानिब जो टीम बैठी है वो फातिमा टीम है। दोनों टीमें 5th क्लास से हैं। इस वक्त मैं गुजारिश करूंगा मौलाना नफीस साहब से कि वो सवालात का सिलसिला शुरू करें।